Hello and welcome back. So we are going to take you to a journey of growing years of children, or in simplified terms, a fascinating world of child development, yet confusing parenting. With me, we have a very special guest, Dr. Nimrit Sidhu, who is a child specialist and she's been practicing for more than 10 years. So a very warm welcome, Dr. Nimrit. Thank you, Mayank. To kick off the show, may I request you to please say a quick hi to our viewers, describing about yourself a little. Yes, absolutely. Hi, I'm Dr. Nimrit. I've been a pediatrician for about 5 years now, but I've been practicing in this field for about 10 years. I recently completed my fellowship on allergy, asthma, and immunology, and I'll be here with Mayank ji. It's absolutely a pleasure to take up any questions on parenting that you guys have. Okay, to start, I would also like to request you to tell us about your education background. Yes. So I've been born and brought up in Chandigarh, and I did my schooling right here around the corner. I graduated from Carmel Convent School. Then for my medical, did my medical college from Amritsar, and then I went on to do my pediatrics residency in Bangalore for about 3 years. Okay. Then I came here, started doing my senior residency, and then for about a year I did my fellowship from PGI. It was a collaboration with PGI, and now I've been practicing for myself for the last 1.5 years. Okay, and where exactly is your clinic? So I'm practicing in Chandigarh, Sector 10, house number 516. This is where I sit in the mornings, and in the evening I'm associated and affiliated with a private hospital called Healing Hospital, wherein I sit in the evening from 4 to 5:30. Okay, I also saw there are a couple of different addresses that are mentioned on Yes. your website. So what are those? So the primary address is of our clinic that's right here. We are expanding our clinic to next door now. We're expanding our clinic now. So both these houses would be involved. Apart from that, the address given there is also of Healing Hospital. There is where I attend most of the deliveries, and we see a lot of neonates coming in. We do our evening OPDs in Healing Hospital, Sector 34. So you're not only a physician, are you a surgeon as well? No. So MD Pediatrics is practicing the doctor of medicine, basically. So I do just the medicine part of pediatrics. I think what you're addressing is pediatric surgery. That's a completely different branch. You've got to be a surgeon for that. Right, sure. Okay, so to begin the Q&A, my very first question to you would be that how a parent should decide that which doctor is good for their child. Yeah. So मयंक जी, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ऑनेस्टली पेरेंट बनने के पहले मैंने आपको एक बहुत लंबा सा आंसर देना था कि एक अच्छा डॉक्टर क्या होता है, मैंने क्या देखना था, पर एक पेरेंट बनने के बाद what I see in a pediatrician बिल्कुल चेंज हो गया है. So anything and everything around my son has to be very genuine, very approachable. So when I see myself as a pediatrician, जैसे मैं अपने बच्चे को खुद वैक्सीनेशन देती हूँ, obviously I treat my child myself. So जब भी हम ये करते हैं, I want somebody who's very balanced and essentially is a good person. अब ये बहुत cheesy sound करता है, but at the end of the day I would want somebody जो अपने practice के बारे में बोले या अपने treatment के बारे में बोले, not run the other doctor down कि ओहो उसने क्या दवाई दे दी, वो क्या कर रहा है. I don't want to know that. I want to know कि as a pediatrician what you're bringing on board. For example, अगर कोई मेरे पास बच्चा आता है, so I'll tell them a little bit कि development ऐसे करो बच्चे की, nutrition में ये दे दो, vaccination ये कर दो, ये भी कर सकते हो. And second thing हम जो देखते हैं कि the doctor should be very approachable. ठीक है, ऑब्वियसली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि आप 24 घंटे अवेलेबल हो, बट बाय एंड लार्ज अगर कोई इमरजेंसी है, यू हैव टू बी देयर फॉर द चाइल्ड. सो इफ आई हैव टू रियली पेन डाउन 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, सबसे पहले होएगा दैट द डॉक्टर शुड बी वेरी अप्रोचेबल, कि मैं फोन करूं, मैसेज करूं, व्हेन इन एब्सोल्यूट इमरजेंसी वो डॉक्टर हो. And the second thing is that the doctor should be very nice to talk to. Like let's say अगर कोई help हमारे घर पे आती है, और anybody around my son, I would want best things for my child. कोई बच्चा, कोई डॉक्टर हंस रहा है and he's very warm to talk to, or she is a very warm person, I would appreciate that. Obviously knowledge is a given. अगर आप डॉक्टर हो तो you definitely have knowledge, but these are some very important things. So I am going to be a devil's advocate Yes. here. And how would a doctor know that whether it's an emergency, when you say the doctor should be approachable? So I remember जब मैं अगर अपने बारे में बात करूं, when my son was quite young, so it was very difficult for me to have that trust in a doctor of his genuinity, to be precise, that whether
the medicines or the vaccination that he's prescribing, whether they're genuine or no, whether he will be able to spend that time that I want for my child. As a new parent, you're also a new parent now, but you're a child specialist yourself, so I'm sure that I mean you have all the answers. But for us, it was very difficult to, as a new parent, to know what we need to do with a newborn baby, right? Right. So I think for common people, it's still a little difficult. So if you can just elaborate a little more, Yeah. if you can just drill down a little more Yes. for parents who are watching this show. I mean, how do we really decide that which doctor is the best? So I understand approachable is one key factor that a doctor should have, but honestly speaking, it's very difficult to, because you know it's such a sensitive Absolutely. topic, where I will share my feelings with you that you know for a new parent, वो कुछ भी बच्चे को होता है, you feel like calling the doctor immediately, right? Yes. So मयंक जी, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है. हाँ. So कुछ भी अगर बच्चे को होता है तो you feel like calling to the doctor, that means कि आपके डॉक्टर ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है. ठीक है, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सो द फ्रॉम द मिनट गो, एंड आई मस्ट से दिस कि आजकल की मदर्स, आजकल के फादर्स इवन इतने हैंड्स ऑन, इतनी इंफॉर्मेशन, देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन, एंड आई से आई जस्ट लव द वे पेरेंट्स आर आजकल. दे नो एवरीथिंग, दे वांट टू नो एवरीथिंग, दे आर वेरी इंक्विजिटिव. तो फ्रॉम द मिनट गो, हर मदर का एक इंस्टिंक्ट होता है. सो बिफोर यू लीव द हॉस्पिटल, अगर आपके डॉक्टर ने इतना कॉन्फिडेंस आप में इंस्टिल कर दिया कि ऐसे बच्चे को दूध पिलाना है, ऐसे बर्प करना है, ये इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी में मुझे कॉल कर देना, यू आर गुड टू गो. आपका आंसर वही है. बट इफ यू फील कि मैं हॉस्पिटल से भी निकल गई और मुझे बच्चे को पकड़ना नहीं आ रहा है, दूध नहीं आ रहा है, फॉर्मूला देना है कि नहीं, पानी कितना गर्म करना है, दैट मीन्स यू नो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं ठीक मिली, राइट? सो आपका आंसर उसी में ही है. एंड कमिंग टू द अदर फैक्ट, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम पहली बार अब मिल रहे हैं. यू नो लेट्स से बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, बुखार के साथ आ रहा है. दैट होली डिपेंड्स ऑन बच्चे को क्या प्रॉब्लम है. नाउ आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय इमरजेंसी. लेट्स से मेरे पास एक बच्चा आया जो 4 साल का है, उसको जुकाम खांसी है, थोड़ी सी छाती में से आवाज आ रही है, सो हम बेसिक दवाइयां दे देंगे. अब मुझे क्या पता कि उस बच्चे को कैसे इमरजेंसी है. मैं पेरेंट्स को बताऊंगी कि अगर इसको 101 बुखार होगा तो ये करना, अगर इसके बाद भी नहीं ठीक होगा इमीडिएटली टू कॉल मी. एंड पेरेंट्स आजकल इतने इंटेलिजेंट है, दिल फॉलो एवरीथिंग ऑल्सो. नेक्स्ट डे दिल कम एंड से हाँ ये हुआ था, हमने ये कर दिया था, ये बेबी ठीक था. और लेट्स से अगर नहीं हो रहा बेबी ठीक, सो दिल कॉल यू इमीडिएटली. एंड वी नो, यू नो, वी ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट विद द पेरेंट्स कि वो ऐसे ही नहीं फोन करते. सो एज अ न्यू मदर आई कैन अंडरस्टैंड द पैरानोया. You're obviously very nervous and you're very scared कि this is the literally one thing that you want to be the best at. So you have that kind of instinct also. Right. तो आप मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि अगर एक डॉक्टर अपना काम thoroughly कर देता है इनिशियल स्टेज पे, Yes. when the parents are in the hospital, Yes. तो पेरेंट्स को भी इतना questions नहीं होंगे कि that they're calling the doctor Yes. again and again, right? Absolutely. Is that what you Yes, say? absolutely. Okay, so I wouldn't want to comment on that Others. fraternity. Yeah, yeah. There are a lot of other doctors that they might not be doing the full job, but anyways, we'll move forward. So tell me, जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है या 1-2 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा तक भी अपना कोई भी discomfort, they can't really talk, they can't really say, right? तो डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि उसको क्या है और कैसे उसकी ट्रीटमेंट शुरू करी जाए? सो मयंक जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, एंड ऑल योर क्वेश्चंस आर सो वेल फॉर्म्ड, आई मस्ट से दिस. Thank you. जब मैं एक माँ बनी, एंड आई रिमेम्बर कि मैं अपनी मदर को ये बोल रही थी कि आई रियलाइज्ड दैट देयर इज समथिंग ग्रेटर देन नॉलेज, and that is experience. Correct. So with experience हमें अब पता लग गया. Also you become parents yourself. तो वो पूरी किताब लिखी गई है. You can refer to that every single time. So with experience आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा थोड़ा sick है, ये हो जाएगा sick. And by sick I mean emergency. इस बच्चे को emergency की कोई जरूरत नहीं, इसको है. So ये with experience बन जाता है. न्यूबॉर्न बेबी का बाय एंड लार्ज रूल है, जो बच्चा आराम से सो रहा है, दूध पी रहा है, दिन में 3 बार सुसु कर रहा है, अपनी फीड के लिए उठ रहा है, वापस सो रहा है, बाय एंड लार्ज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है.
एवरी 2 वीक्स हम विजिट के लिए बुलाते हैं, उस पे अगर बेबी ग्रेजुअली वेट गेन कर रहा है, दैट मीन्स द बेबी इज डूइंग वेरी वेल। द सेम अप्लाइज फॉर 3 years। दैट्स व्हाई हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि जो आपकी ग्रोथ विजिट्स है, जो आपकी वैक्सीनेशन विजिट्स है, डू नॉट मिस देम। ठीक है, सो मेनी पेरेंट्स कह देते हैं कि नहीं इसको जुकाम खांसी था, नहीं कोई घर पर आकर इंजेक्शन लगा गया, एंड फिर वो वापस आ जाते हैं 2-3 साल बाद कहने के लिए देखो हमारा बच्चा तो बड़ा ही नहीं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर फॉलो अप पे हमें पता लगता रहता है कि ये बच्चा ऐसे ग्रो कर रहा है, एंड आई एम श्योर बाकी भी सारे करते होंगे, बट आई एज अ पीडियाट्रिशियन स्पेशली मेक इट अ पॉइंट कि अगर कोई बच्चा मेरे पास वैक्सीन के लिए आ रहा है या कोई खांसी जुकाम के लिए आ रहा है, मैं उसका वेट भी चेक करूंगी, हाइट भी चेक करूंगी, डेवलपमेंट भी चेक करूंगी, और मदर से पूछूंगी भी कल पूरा दिन इसने क्या खाया। दैट गिव्स अस इनफ इंफॉर्मेशन टू नो कि बच्चा कैसा है, इसको क्या प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली बच्चा नहीं बोल सकता, बट आवर एक्सपीरियंस कम्स इनटू प्ले एट दैट टाइम। नहीं, कुछ जैसे बड़े कॉमन से, जैसे जब बच्चा बॉर्न होता है इनिशियली देयर आर चांसेस ऑफ हिम हैविंग जॉन्डिस। यस, वो कितने % केसेस में होता है और क्यों ऐसा होता है कि वो होता ही होता है जॉन्डिस? सो अबाउट 40 to 50% बच्चों को जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रहता है मदर एंड बेबी का ब्लड ग्रुप। ठीक है, व्हेनेवर द ब्लड ग्रुप्स डोंट मैच, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी हम बोलते हैं। लेट्स से मदर देयर इज डिफरेंस इन अ ब्लड ग्रुप, उस केसेस में जॉन्डिस हो सकता है। देयर मेनी अदर फैक्टर्स। अगर बच्चा टाइम से पहले बॉर्न हो सकता है, उसको जॉन्डिस का खतरा है। अगर बच्चा दूध ठीक से नहीं पी रहा, उसको जॉन्डिस का खतरा है। सो देयर मेनी, एंड ऑब्वियसली लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। सो देयर कैन बी मेनी रीजंस ऑफ जॉन्डिस। फनीली सो मेनी पीपल, ऐसे पेरेंट्स पूछते कि पीले रंग के कपड़े नहीं हमने बच्चे को डालने, इसको जॉन्डिस हो सकता है। ऐसे हमने बहुत केसेस देखे। या मैंने प्रेगनेंसी में बहुत हल्दी का दूध पी लिया था, मेरे बच्चे को पीलिया हो गई होगा। सो ऐसा देयर इज नथिंग लाइक दिस। सो अबाउट 40 to 50% बच्चों को यूजुअली इसकी वजह से होता है। पहले 70 घंटे के बाद जिन बच्चों को जॉन्डिस होता है वो बिल्कुल नॉर्मल जॉन्डिस होता है, बट उनको फोटोथेरेपी की जरूरत है। कई माँ बाप ऐसे पूछते थे कि हम धूप में खड़ा कर देंगे इसको, या हम एक नॉर्मल लाइट में क्यों नहीं डाल सकते? नहीं, क्योंकि ये लाइट एक स्पेशलाइज लाइट है जिसको हम यूवी रेडिएशन बोलते हैं। ये जॉन्डिस को हमारी बॉडी से निकाल देती है। सो दैट्स व्हाट इट डज। सो जॉन्डिस इज वेरी कॉमन, एंड अगर हम इसका ट्रीटमेंट करें तो इट्स लाइक अ नॉर्मल डिजीज ओनली, बट इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लेवल से ऊपर जब भी जॉन्डिस बढ़ जाता है, इट कॉजेज एन इफेक्ट ऑन अ ब्रेन, एंड दैट इफेक्ट इज इरिवर्सिबल। वो कभी नहीं ठीक हो सकता। Right. Can you elaborate a little on some common, let's say, misconception about nutrition of baby? सर सबसे बड़ी न्यूट्रिशन तो ये है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन अ मदर इज प्रेग्नेंट। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अब ये 2 लोगों के लिए खाना खाएगी। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। This you saying before the birth or Yeah, after? before the birth. Before so the it birth. starts from there. But जैसे मदर एक प्रेग्नेंट होती है, it happens even after the birth. Yeah, You know, when I am coming to that, sir. वो तो हाँ. मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। सारी मदर्स के साथ मैं बैठ जाती हूँ, एंड सारे मदर इन लॉज के साथ जब मैं राउंड्स पे जाती हूँ, हाफ एन आवर तो मेरा लगता है उनको समझाने में। okay. सो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, यस डेफिनेटली आपके चलो पहले हम वो जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें आपने बोला कि बिफोर द बर्थ। या सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो सबसे पहले मैं बिल्कुल सही बात है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना चाहिए, बट दैट डजंट मीन इंक्रीज करो वॉल्यूम। दैट मीन्स अपनी न्यूट्रिशन को बढ़ाओ, प्रोटीन पर जोर दो। ठीक है, प्रीबायोटिक्स खाओ, प्रोबायोटिक, दही खाओ डेली, 2 चपाती खाओ, एंड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन बाहर की कंट्रीज में समझाया गया है कि 1 ग्लास एक्स्ट्रा दूध भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है। नट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, पर कुछ लोग बहुत ओवरबोर्ड चले जाते हैं और वो ओबेसिटी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो भी बहुत हार्मफुल एक बात है। एंड एज अ डॉक्टर ऑफ दिस 21st सेंचुरी मैं कहना चाहती हूँ कि हम एज पीडियाट्रिशियन नहीं देखते अब कमजोर बच्चों को, हम अब मोटापा देख रहे हैं इनफैक्ट ऑन द अदर साइड। सो ये सबसे बड़ा वहम है कि 2 लोगों के लिए खाओ, 4 परांठे खाओ, सुबह भी शाम को भी। यू डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दैट। You need to have a balanced अ वेरी बैलेंस्ड एंड अ हेल्दी डाइट। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ। ठीक है, सो लोग कह देंगे हल्दी नहीं हमने लेनी क्योंकि पीलिया हो जाएगा। दिस इज अ मिथ, डोंट डू दैट। ठीक है, नट्स नहीं हम खाएंगे, बच्चे को एलर्जी हो जाएगी। एग्स नहीं खाएंगे, उसको पौष्टिक रखेंगे, दैट डजंट मेक सेंस। प्रोटीन आपको चाहिए। हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हो, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ आपसे, कभी मैंने ऐसे सुना नहीं कि आप हल्दी नहीं खा सकते कि पीलिया हो जाएगा बच्चे को। एंड इनफैक्ट
सबसे फनी स्टोरी ये है कि एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी फॉलो अप के लिए. हम यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज को एट फॉलो अप बिफोर दे डिलीवर 1 वीक बिफोर देख लेते हैं, जस्ट टू चेक कि हाउ द मदर इज डूइंग, कि ब्रेस्ट फॉर्मेशन ठीक है, क्योंकि उन्होंने दूध पिलाना एंड ऑल दैट. एंड वो उसकी सारी फैमिली बाहर चलेगी, वो धीरे से वापस आ गई कहने कि मेरे इन लॉज को डायबिटीज है, तो मेरा बच्चा उसी घर में रह सकता है जिसमें वो रह रहे, उसको फैलेगी तो नहीं बीमारी. तो यू नो दिस इज द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट वी हैव एंड वी हैव टू एड्रेस इट. मतलब ठीक है, एज सिटिंग हियर टू एजुकेटेड पीपल हम हंस सकते हैं, बट दिस इज द ग्रेव सिचुएशन वी नीड टू एड्रेस. सो द सेकंड मिथ आई फील इज, लोग कहते थे या पोस्ट बर्थ कि माँ का दूध तो बहुत पतला सा होता है, गाय का दूध शुरू कर दो इनिशियल. सो ये सबसे बड़ा मिथ है. माँ का दूध चाहे पतला हो, चाहे कम आ रहा हो, चाहे बहुत आ रहा हो, वो बच्चे के लिए बिल्कुल एप्ट है, परफेक्ट है. उसमें गाय का दूध 1 साल से पहले नहीं शुरू करना, उसमें कोई एक्स्ट्रा एडेड न्यूट्रिशन नहीं होती. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द अदर थिंग, हमें जो लगता है कि हींग की गुटियां लोग काफी लगा देते हैं बच्चे के ऊपर, स्टमक के ऊपर, कि इसको गैस बहुत हो रही है. आई हैव नेवर सीन इट वर्क. I don't know. And sometimes मैं कोई इतनी गर्म होती हैं गुटी, देर बॉइलिंग, वो बच्चे की स्किन को जला देती. So that is another thing that I don't understand. And वो बच्चे को सौंफ का पानी पिलाते जाएंगे क्योंकि बच्चे को गैस है, वो भी नहीं करने की जरूरत. That's also myth. तो अच्छा, अभी हम we were talking about the meals that women should have post birth. So tell us about that. उसमें उस समय क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी मैंने सुना है, जो मतलब मैंने अपनी फैमिली सर्कल में या फ्रेंड सर्कल में ऐसा ऑब्जर्व करा है कि व्हेन द लेडीज मतलब फीड कर रही हैं वो, तो उसमें बोलते हैं कि आप ये मत खाओ क्योंकि ये बच्चे में भी चले जाते हैं. तो इसमें कितना फैक्ट है और इज जस्ट कंप्लीट मिथ? सर, सो स्पाइसी मयंक, स्पाइसी खाना हम कह देते हैं मदर्स को कि अवॉइड कीजिए, बिकॉज गैस की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है. कैफीन का कंटेंट थोड़ा लिमिट करना चाहिए, अबाउट 200 मिलीग्राम पर डे, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है. नहीं, बट वो क्या एक्चुअली मदर्स मिल्क के थ्रू जाता है बच्चे में? यस, एब्सोल्युटली. ठीक है, इसलिए प्रेगनेंसी, सो इट्स नॉट अ मिथ. सो कैफीन इज नॉट, बट वो लिमिट करना है. जैसे 1 कप आप कॉफी दिन में पी सकते हो, 200 मिलीग्राम इज अलाउड. सो 1 कप कॉफी आप बिल्कुल पी सकते हो. एंड ऑब्वियसली बिगेस्ट, स्मोकिंग, अल्कोहल तो बिल्कुल ही मना है. ठीक है, बट एज पर फूड जो मर्जी खाओ. अब कई मदर्स ऐसी है बेचारी जिनको खिचड़ी देते रहते 6 महीने तक, उसकी क्या न्यूट्रिशन बनेगी, वो कहाँ से दूध बनाएगी अगर उसको 6 महीने खिचड़ी दे रहे हो आप? तो नॉर्मल घर का खाना खा सकते हो आप. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आज चने खा लिया और मेरे बच्चे को गैस होगी. आपने एक लिमिटेड पोर्शन में आधी कटोरी खाई है, उसमें कहाँ से गैस आ जाएगी? ठीक है, तो आप बिल्कुल दूध भी पियो. ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं I see it, even though I've been practicing for about 5 years now, is कि मदर्स को पंजीरिया, घी देते रहते हैं. अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पंजीरियों से आपको दूध गाढ़ा आ रहा है, वो गाढ़ा दूध बच्चे के पेट में गट्टे फॉर्म कर रहा है, तो उसको गैस और कॉन्स्टिपेशन रहेगी. जितना आप पानी पियोगे उतना ही दूध आपको पतलाएगा, उतना बच्चे को दूध पचेगा. यू नो हाउ दे से, सो बेबी विल डाइजेस्ट दैट मिल्क सो मच फास्ट. आप बोल रहे गाढ़ा अच्छा नहीं है? मतलब यू हैव, एक मदर को डिलीवरी के बाद हम एक ही एडवाइस देते हैं जो हम बार बार देते हैं, जो मुझे भी दी गई थी, 20 to 22 ग्लासेस ऑफ पानी पीने चाहिए दिन में. इन टर्म्स ऑफ लीटर आप बताएं. ठीक है, सो इज इट 3 to 4 लीटर? एटलीस्ट 4 to 5. 4 to 5 लीटर्स इज अ गुड अमाउंट. 20 से 22 ग्लास बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ पानी है. आपका अल्टीमेटली दूध बनता किससे? पानी से और कैल्शियम. इसी से हम दूध बना रहे हैं. कैल्शियम से हम दूध पीते हैं तो हमारा कैल्शियम बन जाता है, राइट? और दूध का वॉल्यूम कैसे बनता है? पानी पीने से. सो एटलीस्ट दैट मच करना चाहिए. पंजीरियों से नहीं बनता दूध. वो जो बीच में गूंदे डालते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. काफी गर्म होता है वो. सर, एक तो मुझे ठंडे गर्म का कॉन्सेप्ट पता नहीं है. नहीं, एंड मैं बिलीव भी नहीं करती ऑनेस्टली. ओके, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि यू नो व्हाट आर सम अदर मिथ्स दैट यू एनकाउंटर, लेट्स से फ्रॉम अ न्यूबॉर्न बेबी टू 1 year, और क्या मिसकंसेप्शंस हैं या मिथ्स हैं, मतलब कुछ ऐसी कॉमन वन which you think that you should address right now? Yeah, I think हम प्रोटीन के यूज को बड़ा अंडरमीन करते हैं. लोग कहते हैं कि हमने एग्स नहीं देने अपने बच्चे को, वो गर्म बहुत है.
हमने प्रोटीन नहीं देना बच्चे को, उसकी बॉडी ज्यादा बन जाएगी। अब मुझे नहीं पता ये बॉडी ज्यादा कम कैसे बनती है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो अपने बच्चे को, मैं हमेशा हर अपने पेशेंट के, निम्रत जी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यू बॉर्न बेबी टू 1 year। या तो एग तो उसमें आएंगे ही। ठीक है सर, अब 9 months पे आप नॉन वेज स्टार्ट कर सकते हैं अपने बेबी के लिए। So 9 months पे you have to start. I mean, if you are a non-vegetarian, you can start But in non-vegetarian. which form? In boiled chicken, in the egg white. No, but how do you give that? एग वाइट आप मैश, वो ऑलरेडी मैश फॉर्म में होता है, डायरेक्टली दे सकते हो आप। बॉइल्ड चिकन को पूरा बॉईल करके राइस के साथ मैश करके दे सकते हो। Okay. So that is a great source of nutrition, especially प्रोटीन तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि जो हमने देखा या करा है वो ये है कि 1 साल तक तो कुछ ऐसा सॉलिड फूड, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली क्योंकि Yeah. बहुत टाइम हो गया, बट आई Yeah. डोंट नो वेदर इट्स 9 months और आफ्टर 1 year you start giving something solid, right? या तो सर ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। एंड मैं इस पे पूरा घंटा लगा सकती हूँ समझाने के लिए कि आप अगर अपने बच्चे को 1 साल तक कुछ सॉलिड नहीं दे रहे हो, एक सॉलिड फॉर्म में नहीं दे बट रहे हो, होता क्या है, मेरे को याद नहीं। एक छोटा सा थंब रूल है हाँ। कि 6 से 8 महीने तक आप अपने बच्चे को मैश्ड खाना देते हो। मैश्ड का मतलब वो चम्मच से गिरना चाहिए। हाँ। 8 से 10 महीने पे वो लंपी होना चाहिए, जैसे मैंगो होता है कि वो चम्मच पे रहे, नीचे ना गिरे, उस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। और 10 से 12 महीने तक हमें ग्रेनी कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे दाल और चावल, राइट? तभी तो 12 महीने पे बच्चा हमारे साथ हमारे टेबल पे बैठ के वो खाएगा जो हम खा रहे हैं। यही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो अगर आप 1 साल तक बच्चे को सिर्फ दही जैसी चीजें दे रहे हो, मैश करके चीजें दे जा रहे हो, 1 साल के बच्चे को कुछ सॉलिड में नहीं दे रहे, तो आप कैसे 1 साल पे सोच सकते हो कि वो खाएगा जो आप खा रहे हो? इसीलिए 1 साल के सारे बच्चे यहाँ लाइन बना के खड़े होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं, क्योंकि हमने उसको आदत ही नहीं डाली। वो भूखा था, थोड़ा सा उसने खाने को हाथ मार दिया, हमने फटाफट दूध की बोतल दे दी। ये या हम ब्रेस्ट फीडिंग करें 3-3, 4-4 साल तक, तो बच्चा कहाँ से कुछ खाएगा? उसने तो आधा ही पेट भरना है अपना। एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर मुझे डेली खाना पका पकाया मिल जाता है ऐसे स्वाद डेली, तो हम भी मैकडॉनल्ड्स खा लेंगे। पर हमें पता है कि उसकी न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, तो यू हैव टू बिल्ड ऑन द न्यूट्रिशन। ये धीरे धीरे टाइम के साथ कर सकते हैं हम। तो आप ये कह रहे हो क्योंकि बच्चे को आदत ही नहीं हम डाल रहे सॉलिड खाने की, या तो इसलिए वो बाद में भी बच्चा जी। ना खाने की कंप्लेंट 6 महीने तक तो माँ का दूध ही चाहिए। 6 महीने के बाद हमें सॉलिड स्टार्ट करने चाहिए, सेमी सॉलिड्स हम बोलते हैं उनको। और उसके बाद प्रॉपर खाना जो हम टेबल पे बैठ के खा सकते हैं, वो 1 साल का बच्चा खा सकता है। और ये जो काउ मिल्क का एक जो वो है, वो कब से शुरू होता है? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद। क्योंकि बच्चे का, हमारे बच्चों का स्टमक तब तक मैच्योर हो जाता है प्रोसेस करने के लिए ये गाय का दूध। तो यूजुअली अगर हम 1 साल से पहले स्टार्ट कर देते हैं तो वो स्टमक की हमारी लाइनिंग प्रोसेस नहीं करती, अनीमिया की तरफ चला जाता है, खून गिरने लग जाता है, आयरन डेफिशिएंसी कॉज कर देता है ऐसा काउ मिल्क। ओके, तो 1 साल तक तो नहीं देना चाहिए। नहीं। तो 1 साल तक यू सेइंग दैट इट्स ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, आफ्टर 6 months थोड़ा सा Semi-solid. सेमी सॉलिड, Yes. फिर 9 months पे 6 to 8 months तक हम चाहते हैं कि बच्चा दिन में 2 बार ऊपर का खाना ले, और कितने बारी ब्रेस्ट फीड ले? 3 to 4 times, 3 to 4 times. या बीच में ले सकता है। Okay. एंड वो धीरे धीरे हम कंसिस्टेंसी कम कर देंगे। 8 से 10 में हम 3 बारी दिन में कर देंगे, 10 से 12 3 बारी वो ऊपर से दूध 2 बार। तो बेसिकली हम उसको तैयार करें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। राइट। और जब 1 साल के बाद हम वो काउ मिल्क भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग या बंद कर देनी चाहिए आइडियली। बट कई सब मदर्स को होता है कि बेबीज नहीं छोड़ रहे, तो वो नाइट टाइम फीड्स बन जाती है। ओके, श्योर। इसके अलावा और क्या मिथ्स हैं और या मिसकंसेप्शंस हैं आपके हिसाब से फ्रॉम अ न्यूबॉर्न टू 1 year? एनीथिंग एल्स व्हिच इज क्वाइट मेजर दैट यू वांट टू एड्रेस? आई थिंक ऑल्सो दैट एक बहुत बड़ा डिबेट चलता रहता है नमक और चीनी के मात्रा में, कि खाने में नमक डाले कि ना, चीनी डाले कि ना, तड़का लगाए कि ना। तो मैं अपने मदर्स को कहती हूँ कि लाइफ ऑलरेडी बहुत बिजी है, पेरेंटिंग ऑलरेडी एक बहुत कंफ्यूजिंग वर्ल्ड है, हर बंदा अपनी सलाह देगा। बेसिक साइंस कोई ऐसा रेजिमेंट नहीं देती, कोई प्रोटोकॉल नहीं है सेट कि ये देना कि नहीं। हाँ, एज डॉक्टर्स हम कहते हैं कि आप शुगर अवॉइड करो, प्रोसेस्ड खाना अवॉइड करो, पर नमक आप 25% दे सकते हो। उससे क्या फायदा है कि आपका बच्चा जब 1 साल का होगा वो आपका खाना खा सकेगा, उसको टेस्ट आएगा।
चीनी का टेस्ट तो उसको ऑलरेडी है क्योंकि हम उसको एप्पल खिला रहे हैं, पियर खिला रहे हैं, पीचेस खिला रहे हैं, उससे ऑलरेडी टेस्ट आ रहा है उसको। पर नमक का टेस्ट आप ब्लैंड खाना देके अपने बच्चे को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो कल को आपका खाना खाएगा, तब उसके लिए डिफरेंट खाना बनेगा, फिर वो फिर से इसकी डेवलपमेंट पीछे चली जाएगी। राइट, क्योंकि हम इसकी बात कर ही रहे हैं, मुझे आप थोड़ा सा, हालांकि यू नो आई हैड दैट क्वेश्चन मच लेटर, बट सिंस वी टॉकिंग ऑन दीज लाइंस, सो लेट मी आस्क, ये जो फॉर्मूला मिल्क होता है ये कब आप इंट्रोड्यूस करते हैं? तो यूजुअली हम 6 मंथ्स के बाद कहते हैं मदर्स को कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए। आप रेकमेंड करते हो? सी बेस्ट चीज तो मदर्स मिल्क ही है, बट कई ऐसी मदर्स हैं जिनका मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता या जिनको काम पहले से ज्वाइन करना पड़ता है, तो आप दिन में 1 या 2 बार अकॉर्डिंगली फॉर्मूला दे सकते हैं अगर आपका बिल्कुल ही दूध नहीं बन रहा है। जैसे मैं वर्किंग मदर हूँ, मैंने अपना ब्रेस्ट मिल्क स्टोर किया हुआ था, पर फिर भी हम दिन में 1 बार अपने बच्चे को दे देते हैं फॉर्मूला, तो ऑब्वियसली बेस्ट इज ब्रेस्ट मिल्क। सेकंड चॉइस इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉर्मूला, एंड द लास्ट चॉइस व्हिच आई डोंट रिकमेंड एट ऑल इज काउस मिल्क। सो काउस मिल्क से अच्छा तो फॉर्मूला ही है। अच्छा, आपका काउस मिल्क के लिए बड़ा ही डिफरेंट ओपिनियन है, whereas I hear a lot that, you know, cow milk from a lot of parents, that cow milk is the best. So I think that's something you should be talking a little more and explain that why it is not good. सर बेसिक यही है कि बच्चे का पेट सबसे क्लोज कंसिस्टेंसी जो ह्यूमन मिल्क की कर सकता है वो है फॉर्मूला मिल्क, क्योंकि वो साइंटिफिकली डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो फॉर्मूला को मैच ब्रेस्ट मिल्क को मैच कर सके। काउ मिल्क में उतनी न्यूट्रिशन नहीं है जो हमारे माँ के दूध को compete कर सके। उसमें क्या है कि बच्चा पेट जल्दी भर जाएगा, वेस्ट टू केसिन की रेशियो होती है जो दूध को बनाती है, ये 2 प्रोटीन्स है दूध के। तो जो अगर आप साइंटिफिकली बात करेंगे तो फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क की ऑलमोस्ट सेम है, पर काउस मिल्क की कंप्लीटली डिफरेंट है, वो 60:40 की रेशियो में आ जाता है। सो काउ मिल्क के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, एंड क्लिनिकली हमें उसी वक्त देख के पता लग जाता है जब मदर्स आके कहते हैं कि बच्चे को बहुत पॉटियां कर रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, हम देख के बता सकते हैं कि इस बच्चे को काउ मिल्क पे डाला था। वो इमीडिएटली बच्चे को डायरिया स्टार्ट हो जाते हैं, एंड बिकॉज डायरियाज हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, खून गिर जाता है। सो अवॉइड ऑल ऑफ दैट। हम चाहते हैं कि पहले 6 महीने बच्चा अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करे, ग्रोथ का एक स्टेडी पैटर्न फॉलो करे, वो काउस मिल्क में नहीं मैच कर सकते। तो काउ मिल्क आपके हिसाब से कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। वो वैसा इम्पैक्ट नहीं करेगा बॉडी में जैसे वो पहले करता है? नहीं। So after 1 year, you can it's introduce. safe to It's absolutely safe to introduce Yes. cow milk. Okay. Abhi, when we were discussing, you also spoke about prebiotic and probiotic. Yes. So tell us what is the difference and what is the importance? मैं प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, आजकल बहुत स्ट्रेस है ऑर्गेनिक ईटिंग राइट पे, बट आई थिंक हम बेसिक्स भूलते जा रहे हैं। समथिंग एज इम्पोर्टेंट एंड एज स्मॉल एज दही, यू नो, घर पर दही जमाना, ओवरनाइट फर्मेंटेशन करना, ये आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्दी चीजें हैं। एंड एज एन एलर्जी स्पेशलिस्ट स्पेशली मैं आपको कहती हूँ, एंड अब काफी स्टडीज भी आ गई हैं कि जो मदर्स में एलर्जीज की प्रॉब्लम थी, एस्थमा की प्रॉब्लम भी, उनमें नोट किया गया है कि अगर वो प्रेगनेंसी में प्री प्रोबायोटिक्स खाते हैं तो इंसिडेंस ऑफ एलर्जीज उनके बच्चों में बहुत कम है। एंड एज सिंपल, मैं ये नहीं कहती कि बहुत महंगे महंगे प्रोबायोटिक पाउडर मंगवा लो बाहर से, नहीं, 1 कटोरी दही 2 बार दिन में सफिशिएंट, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपका एस्थमा ज्यादा है, आपको बहुत एलर्जीज है, तो दे आर वेरियस अवेलेबल प्री प्रोबायोटिक्स। मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो भी की थी उनकी, यू कैन स्टार्ट एडिंग देम टू योर डाइट, एंड वो आपके बच्चे के लिए, सेहत के लिए बहुत परफेक्ट है। इवन समथिंग एज स्मॉल एज माइक्रो ग्रीन्स, सैलेड के ऊपर डालने वाली चीजें, एंड दे आर वेरी इकोनॉमिकल टू यूज, दे हैव ग्रेट इफेक्ट्स ऑन आवर सिस्टम, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आप एलर्जीज की बात कर रहे हैं, मैं, you know, I would like to share an example that, you know, one of my friend, he's from north, but he recently shifted to Bangalore. Okay. And उसका जो बेटी को pollen is very common, I think, in southern part of India. Even in northern. But it's not that much. Yeah. So, for our viewers, tell us what is pollen and how it affects a body. ठीक है, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल पोलन सीजन चल रहा है नॉर्थ में। पोलन इज नथिंग, जब बेसिकली खेतों में वो काटते हैं अपनी फसल तो पोलन उठती है, इट्स जर्मिनेशन,
जो हो जाती है प्लांट्स की, उनका धूल मिट्टी बेसिकली उठता है और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत देर तक चलता रहता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आजकल बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अर्बनाइजेशन, पॉलन हमारी हवा सर्कुलेशन में बहुत देर तक चलता है, उससे बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है, ठीक है। सो बेसिक चीजें करने से, अगेन स्मॉल चीजों से शुरू करने में। एलर्जी किस तरीके की एलर्जी होती है? रेस्पिरेटरी, ठीक है, जुकाम Respiratory. खांसी, ठीक है, अस्थमा हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, बहुत लोगों को यहाँ फ्लेक्सुरल अपनी फ्लेक्सुरल जंक्शंस पे रैशेस हो सकते हैं, चीक्स पे रैशेस हो सकते हैं, आईज में इरिटेशन हो सकती है। तो एलर्जी किसी भी तरह रह सकती है, उसके लिए 2-4 चीजें करनी है हमने घर पर। सबसे इंपॉर्टेंट है हमेशा अपने बच्चे को या जिसको भी एलर्जी है उसको वेल वेंटिलेटेड कमरे में रखना है, सर्कुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप मेट्रो सिटीज में हो जहां आपको लगता है कि एपीआई, एयर पोल्यूशन इंडेक्स बहुत खराब है, वहां ह्यूमिडिफायर्स रखिए, ठीक है, उससे काफी हेल्प करती है सर्कुलेशन। वो बैड सर्कुलेशन को बाहर निकाल के गुड सर्कुलेशन को अंदर खींचता है। दैट्स द इफेक्ट ऑफ अ ह्यूमिडिफायर। देन अदर थिंग इज कि वो मोटे पर्दे नहीं लगाने, मोटे कारपेट्स नहीं लगाने जो घर पे पर्दे होते हैं, जो क्योंकि वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो कैमरा नहीं दिखा सकता, पर ऐसे पर्दे हम लगा सकते हैं जो थिन कॉटन के पर्दे होते हैं, जो थिक कर्टन्स होते हैं या थिक कारपेट्स होते हैं, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम, जिनके बच्चे या जिनको अडल्ट्स को भी प्रॉब्लम है, वो ऐसे कर सकते हैं। सो दीज आर सिंपल थिंग्स टू गो। और अगर आपके बच्चे को लगता है स्किन एलर्जी हो रही है पोलन से, बेस्ट थिंग रहती है उसको मॉइस्चराइज करो। अब इतनी मार्केट आ गई है हमारे महंगे महंगे मॉइस्चराइजर से, लोग अमेरिका से फोटो भेजते हैं हमें कि ये ले ले। सो इसकी एक सिंपल ट्रिक है, कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड, पर वो बच्चे के मुंह पे नहीं लगाना। एक ऐसा मॉइस्चराइजर चूज करना है जिसमें से खुशबू ना आए, नॉन फ्रेग्रेंस, पीएच फ्रेंडली मॉइस्चराइजर लगाना है, और बाहर जाने से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना है। इतनी चीजें करने से आपकी 30 to 40% एलर्जी कम हो सकती है घर पे बैठे हुए। चलिए एलर्जीज की बात चल रही है तो लेट मी आस्क फ्यू अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट कि आजकल द किड्स आर मोर प्रोन टू लैक्टोस इंटॉलरेंट या ग्लूटेन और व्हीट इंटॉलरेंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे आजकल ज्यादा ये इन सब के इंटॉलरेंट हो रहे हैं? मैं ये एक्सपोजर की बात है, अर्बनाइजेशन की बात है, ठीक है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे बहुत अर्बनाइजेशन हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, उन सब का साइड इफेक्ट है। लैक्टोस इंटॉलरेंस हम आजकल बहुत दिख रहे हैं, ये एक ऑल्सो एक इफेक्ट है अवेयरनेस का। ये प्रॉब्लम थी पहले, इतनी नहीं थी, पर अब अवेयरनेस बहुत आ गई है। सो लैक्टोस एंड व्हीट इंटॉलरेंस बहुत हो चुकी है। ऑल्सो हम कितना प्रोसेस्ड खाना आ गया है, चीनी प्रोसेस्ड, मैदा प्रोसेस्ड, ऑल ऑफ दैट, उसका भी साइड इफेक्ट है ये। एंड आई थोड़ी सी अवेयरनेस में देना चाहूंगी। लैक्टोस इंटॉलरेंस हर बंदा बोल देता है मुझे है। अगर आपको थोड़े हफ्तों ही पहले डायरिया रह चुका है और आप अपना लैक्टोस इंटॉलरेंस का टेस्ट कराओगे, वो पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको गैप देना चाहिए अपनी किसी रीसेंट इन्फेक्शन में और इन टेस्ट कराने में। तो कभी भी अपने आप को एलर्जिक ऐसे कैजुअली नहीं अनाउंस करना चाहिए। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है एंड ये इसको एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, प्रॉपर हिस्ट्री दीजिए, वो टेस्ट करेंगे आपके, उसके बाद पता लगेगा। आधे लोग उल्टा कर देते हैं, टेस्ट करके डॉक्टर के पास आ जाते हैं। सो दैट इज नॉट वैलिड। और मैंने ये भी देखा है, मतलब अगेन समथिंग or a child in our family has that problem or had that problem wherein जब वो 1-1.5-2 साल की भी थी तो she couldn't wear anything woolen। हाँ, उसको रैशेज हो जाते थे बहुत जल्दी। तो वो क्या सिर्फ एक स्किन सेंसिटिविटी की वजह से है या कुछ और उसके पीछे हो सकता है? मोस्ट लाइकली उसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, जो एक एलर्जी की ही प्रॉब्लम है। उसका क्या मतलब है कि स्किन आपकी इतनी ड्राई है कि उसका बैरियर ब्रेक कर गया है और उसके बीच में आपको ये वूलन क्लोथ्स एलर्जी दे रहे हैं। तो इसका एक इलाज है, जो भी आपको ट्रिगर करता है एलर्जी उसको अवॉइड कीजिए। एंड यूजुअली मैं अपने सारे पेरेंट्स को बोल के जाती हूँ कि हमेशा पहले कॉटन की लेयर होनी चाहिए आपकी स्किन को और वूलन को करते हुए, क्योंकि वो वूलन के फाइबर्स जो होते हैं वो इरिटेट करते हैं स्किन को, स्पेशली जो ड्राई है। तो मॉइस्चराइज कीजिए अच्छे से, उससे ना पीछे हटिए और ऑलवेज एक कॉटन की लेयर जाइए। द गुड थिंग इज इस सारी चीज में सिल्वर लाइनिंग क्या है कि जितनी जल्दी आपका बच्चा एलर्जीज के लिए प्रेजेंट करता है उतनी जल्दी वो निकलने की भी चांसेस है। ऑल्सो डिपेंड करता है ग्रॉसली ऑन द सिवियरिटी ऑफ इट, बट उतनी जल्दी द चाइल्ड बिकम्स बेटर। बट देयर इज नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट फॉर सच थिंग्स। डिपेंड करता है सर, मैं कौन सी एलर्जीज है, कब हुई है, कितनी सिवियर है, उसके साथ
लेट्स से एक बच्चा जिसको आंखों में भी एलर्जी है, स्किन में भी, अस्थमा भी है, ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ा है, उसका लॉन्ग टर्म हो सकता है। पर अगर ऐसा एक बच्चा हो जो 4 सालों पे जिसको जुकाम खांसी और छाती से आवाज आती हो डस्ट की वजह से, हमने डस्ट को भी कंट्रोल कर दिया, बच्चे का टाइम टू टाइम चेकअप कराया, उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन की है, वो बिल्कुल निकल जाएगा उसमें।